تھا ایک ہم نے کہا تھا کہ اٹ ول بی ریلیٹڈ ٹو لائک جو ہمارا ایڈلٹ اسسمنٹ سے سملر ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس دوسری کیٹیگری آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے انفینٹس یا چلڈرن ٹھیک ہے نا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو چلڈرن میں ڈفرینٹ ہوتی ہیں, کچھ ہوتی ہیں جو ایلڈرلی میں. ہم نے ڈسکس کر لیا کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ ایج یا جو ہے وہ ہم اس کو چینج کنسیڈر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے. میم آپ کی آواز بہت سلو ہے, تھوڑا سا اگر آپ لاؤڈلی بولیں تو. اچھا میں ساؤنڈ چیک کر لیتی ہوں ویسے تو. ٹھیک ہے بہتر ہے. آئی ڈونٹ نو. جی 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 میم ابھی ٹھیک ہے. اچھا تو آج جو ہم کریں گے وہ ڈسکس ہاؤ چلڈرن ڈفر ان اسٹرکچر اینڈ فنکشن فرام ایڈلٹس and how these differences affect physical assessment, explain component of pediatric history, evaluate the growth and development pattern of infants, toddlers, preschoolers, schoolgoers or adolescents. You know? Describe how to assess the neurological system in the pediatric line and differentiate health assessment norms and variations for infant and children and identify common examination techniques skills for pediatric health assessment. ٹھیک ہے. جو جنرل اناٹمک اور فزیولوجیکل چینجز ہوتی ہے وہ کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں چلڈرن کے. وہ کیا ہوتے ہیں چلڈرنس اینڈ انفینٹس آر ناٹ اونلی smaller than adults but also significantly different in physiology. فزیولوجیکلی بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں بچے بڑوں سے ٹھیک ہے. Knowledge of pediatric anatomic and physiologic differences will aid in recognizing normal variation found during the physical examination. It also assists with understanding the different physiological responses children have in the illness. ٹھیک ہے نا. ہمیں اگر فزیولوجیکل اناٹمیکل اور فزیولوجیکل ڈفرینس پتہ ہوں گے ایڈلٹس اور چلڈرنس کے تبھی جو ہے وہ ہم رائٹ اینڈ رانگ کا مطلب آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے. تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا ہم اسس کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا. اگر ہم ایڈلٹ سمٹمز اور ایڈلٹ چیزیں بچوں میں دیکھنا شروع ہو جائیں گے تو دیٹ ول ناٹ بی اے کریکٹ اسسمنٹ ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں بچوں کی جو ہے وہ کریکٹ اناٹمیکل اور فزیولوجیکل جو چینجز ہوتی ہے ایڈلٹ ہوڈ سے پہلے وہ پتہ ہو ٹھیک ہے نا. اچھا کس طرح سے بچے ڈفرینٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا. اس میں کچھ پوائنٹس ہیں جو obviously وی کین اگنور, لیکن جو کچھ ہائی لائٹنگ پوائنٹس ہیں وہ یہ ہے. ٹھیک ہے. باڈی سرفیس ایریا لارج فار ویٹ میکنگ انفینٹ susceptible ٹو ہائپوتھرمیا. ٹھیک ہے. اور اس میں ہمارے پاس امپورٹنٹ ہے آل برین سیلس پرزینٹ ایٹ برتھ مائلنائزیشن اینڈ یہ ہمارے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کیونکہ ہم بچوں کا نیورولوجیکل اسسمنٹ میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے ٹھیک ہے نا. ہیڈ اس کا لارجر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا, میکنگ اٹ سسپٹیبل فار ہیڈ انجری. ٹھیک ہے. بچوں کا ہیڈ بڑا ہوتا ہے, ہیڈ انجری کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا. اور بچوں کا میٹابولک ریٹ زیادہ ہوتا ہے, آکسیجن نیڈ زیادہ ہوتی ہے اور کیلورک نیڈ بھی زیادہ ہوتی ہے. تو جو ہمارا ڈائٹ اسسمنٹ ہوگا, ہمارا ریسپریٹری اسسمنٹ ہوگا تو اس وقت ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے نا. اچھا بچوں کا اینٹیریور فونٹینل جو ہوتا ہے, فونٹینل پتا نہیں آگے جو ہول ہوتا ہے کیا فور ہیڈ کے اوپر جو ایک اسپیس ہوتا ہے ٹھیک ہے نا, وہاں پہ فونٹینل ہوتا ہے ٹھیک ہے نا. انٹیریور فونٹینل اوپن ہوتا ہے 18 منتھ تک ٹھیک ہے نا. اور پوسٹیریئر کب بند ہو جاتا ہے 2 سے 3 مہینے میں بند ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا.
سنکن فونٹینل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی بچے کا فونٹینل اندر دھسا ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بچہ میم ڈی ہائیڈریٹ ہوگا تو پھر مطلب. ٹھیک ہے. تو فونٹینل کا ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کہاں پر ہے اور اس کو ہمیں اسسمنٹ کا ہمارے پارٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس بچوں کا ٹریکیا شارٹ اور نیرو ہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے جو اب آبسٹرکشن کے چانسز زیادہ ہیں. اینڈ ہارٹ ریٹ زیادہ ہوتا ہے بچوں کا. ٹھیک ہے نا. کارڈک آؤٹ پٹ زیادہ ہوتا ہے. اور 10 ایئرس تک جو ہے وہ ریسپریٹری ریٹ بھی زیادہ ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ کارٹریجز ویک ہوتی ہیں بونس. ٹھیک ہے نا. اور ڈائفرامیٹک بریدنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور بون سافٹ ہوتی ہیں انٹل پیوبرٹی. مسل ٹون تھوڑی سی جو ہے وہ پاور کم ہوتا ہے. اینڈ بس. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو بیسک چیزیں تھی وہ یہی تھی. باقی اس میں کافی ساری چیزیں بٹ دیٹ از ناٹ سو مچ ریلیٹڈ ٹو آر اسسمنٹ. ٹھیک ہے. لیکن ظاہر ہے بچوں میں کافی سارے ڈفرینسز ہوتے ہیں جو اچھا. اب اگر ہم سبجیکٹو ڈیٹا لیں گے. ٹھیک ہے نا. اگر ہم سبجیکٹو ڈیٹا لیں گے تو اگر ایک بہت ہی چھوٹا سا بچہ ہے تو ہم اس میں کیا لیں گے؟ اس میں ہم پری نیٹل مدر کا بھی ڈیٹا لیں گے. اینٹی نیٹل لیں گے. ڈیورنگ لیبر بھی لیں گے. ٹھیک ہے نا. بیبی کا برتھ کے ٹائم کا بھی لیں گے. اور اس کے بعد پوسٹ نیٹل اس کا کیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو جو پری نیٹل ڈیٹا ہوگا برتھ ہسٹری میں اس کے اندر ہمارے پاس آئے گی مدرس ایج اینڈ ہیلتھ ڈیورنگ پریگنینسی. ٹھیک ہے. اور اس کی پری نیٹل کیئر ویٹ گین یا کوئی اسپیشل ڈائٹ لی تھی. ٹھیک ہے نا. یا اس کو ایکسپیکٹیڈ ڈیٹ آف برتھ کیا دی گئی تھی. ٹھیک ہے نا. اور اگین اس پریگنینسی میں کیا کوئی النیس تھی. ٹھیک ہے. واز شی ہاسپٹلائز یا اس نے کوئی پرٹیکولر میڈیکیشن لی تھی. ٹھیک ہے. یا ڈلیوری کے وقت اس نے کوئی میڈیکیشن لی تھی. کوئی ایکس رےز ہوئے تھے اس کے یا کوئی بھی لیب فائنڈنگس تھی. ٹھیک ہے نا. یا اس سے پہلے اگر یہ فرسٹ بیبی نہیں ہے تو اس سے پہلے جتنی بھی پریگنینسیز ہوئی ہے ان بچوں کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اگین وہ بچے کی فیملی ہسٹری کا پارٹ ہوتا ہے. اس لیے وہ پری نیٹل میں ہم نے پری نیٹل ہسٹری میں لے لینا ہے. ٹھیک ہے نا. بچے کی اینٹی نیٹل ہسٹری میں ہم کیا لیں گے کہ کہاں پر پیدا ہوا. ٹھیک ہے نا. واز اٹ دائی نے برتھ کیا؟ ہاسپٹل میں برتھ ہوئی؟ ایل ایچ بی کے تھرو ہوئی؟ کہاں پر ہوئی؟ ٹھیک ہے. گھر میں ہوئی؟ کمیونٹی سینٹر میں ہوئی؟ ہاسپٹل میں ہوئی؟ ٹھیک ہے. اینڈ دین لیبر واز انڈیوس یا اسپونٹینئس تھا. ٹھیک ہے نا. اینڈ ہاؤ لانگ واز دا لیبر. اینڈ دین واز اٹ نارمل ویجینل ڈلیوری یا سیزیرین فورسیپ سیکشن واٹ ایور واٹ واز دا فارم آف ڈلیوری. ٹھیک ہے نا. اینڈ دین جسٹیشن ایٹ برتھ کتنے منتھس پہ. ٹھیک ہے نا. واز اٹ ارلی تھا یا لیٹ تھا. ٹھیک ہے نا. یا وہ ایک برتھ تھی یا ملٹیپل برتھس تھی. ٹھیک ہے نا. ایک الائیو ہے ایک ڈیڈ ہے اس طرح بھی ہوتے ہیں نا. تو وی ہیو ٹو بی ویری پرٹیکولر اباؤٹ آسکنگ اینٹی نیٹل ڈسکرپشن. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں بچے پہ. بچہ جب پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے. جب آپ اینٹی نیٹل ہو گیا بچہ از ایئر تو وہ بچہ کب ایٹ برتھ ویٹ کیا تھا. ٹھیک ہے نا. ایبگار اسکور کیا تھا. ایبگار اسکور کیا ہوتا ہے؟ ایبگار اسکور کسی کو نہیں پتا کیا ہوتا ہے؟
जी मैम, पता है आपका स्कोर का। क्या है? मैम ये एक स्कोर होता है, जैसे बेबी मतलब डिलीवर होता है ना, तो ये हम अवगार स्कोर करते हैं। जैसे ए फॉर अपीयरेंस उसकी होती है, और पी फॉर मैम उसकी प्रोमिनेंस कुछ इस तरह होता है, जी फॉर ग्रॉस होता है, और आर फॉर उसकी रेस्पायर, पी फॉर पल्स होता है, सॉरी, आर फॉर रेस्पिरेटरी होती है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि अपीयरेंस बेबी किस तरह पैदा, उसका जो स्कोर होता है वो 0 to 15 होता है ना। तो हम्म। हम लोग उसमें देखते हैं कि अपीयरेंस उसकी कैसी है, मतलब वो पेल है, पिंक है, या ब्लूइश तो नहीं है, मतलब साइनोस तो नहीं है बेबी ना, तो उसको हम उस तरह से ग्रेड देते हैं। फिर दूसरा हम उसका उसकी हम लोग अपीयरेंस के बाद हम उसका पल्स देखते हैं कि रिफ्लेक्शन। पल्स उसकी उसकी नॉर्मल है। जी फॉर ब्रेस्ट देखते हैं कि भाई वो कुछ फील कर रहा है या नहीं कर रहा है, जब हम उसको टच कर रहे हैं या कोई हर्ट कर रहे हैं, फिर उसको मतलब रोना हो रहा है या कोई हमें रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसका हम उस ग्रेड से देते हैं। और फिर हम उसकी रेस्पिरेशन देखते हैं कि रेस्पिरेशन नॉर्मल है या किस तरह है, मतलब वो डिफरेंट उसके हम नंबरिंग देते हैं। फिर हम वो बनाते हैं कि आया उसका नॉर्मल है, एवरेज है, या फिर मतलब जो है पेशेंट है वो फुली साइनोज है, सॉरी बेबी है वो साइनोज है, किस तरह ये होता है आपका इसको। ठीक है, तो बेबी के एपगार स्कोर से हमें क्या पता चलेगा कि एट बर्थ उसको कोई बर्थ इश्यूज तो नहीं थे जो कि आगे उसके हेल्थ इश्यूज को लीड करें, ठीक है ना। जी मैम। तो एपगार स्कोर ऑब्वियसली एवरी मदर वोंट बी एबल टू टेल यू। आप उसको पूछेंगे एपगार स्कोर क्या था तो नो वन विल टेल यू, ठीक है ना। इतना लिटरेट बहुत ही कम पाकिस्तान में आपको लोग मिलेंगे। सो यू हैव टू जी बी मैम। वेरी पर्टिकुलर। आपको पूछना है कि जैसे जब वो पैदा हुआ तो उसका रंग नीला तो नहीं हो रहा था, ठीक है ना। उसके हाथ पैर की मूवमेंट्स कैसी थी, बीक मसल टोन थी, क्या था, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो आपको डिटेल हिस्ट्री की तरह जो है वो पूछनी होगी, ठीक है ना। उसको इंक्यूबेशन की नीड तो नहीं थी, ऑक्सीजन की नीड तो नहीं थी, कोई सक्शनिंग की नीड तो नहीं थी, ठीक है ना। एंड देन कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं डिटेक्ट हुई थी, ठीक है ना। और पोस्ट नेटल में क्या हमने पूछना है कि जब उसको फीड कराया तो वॉज ही या शी एबल टू फीड प्रॉपरली, कोई जॉन्डिस या कोई साइनोसिस या कोई रैशेस तो नहीं हुए थे एट बर्थ, ठीक है ना। एंड देन क्योंकि वो अगर कोई कट्स लगे हैं और वो मार्क्स हैं बॉडी पे, तो ऑब्वियसली दोज आर नॉट बर्थ मार्क्स, दो आर द बर्थ इंजरी मार्क्स, ठीक है। तो वो हमारे उसमें आ जाएगा। एंड देन लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे क्या था, बेबी ने फीड किस तरह लिया, ब्रेस्ट फेड किया या बॉटल फेड किया, ठीक है। एंड बेबी का वेट गेन किस तरह से चल रहा है। एंड देन अगर ये एडमिशन है फर्स्ट वीक में ही तो फिर क्यों है और क्या इश्यूज रहे, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा हमने फैमिली हिस्ट्री लेनी है बच्चे बच्चे की, तो इसी तरह सारे जैसे हमने नॉर्मली हम सारे सिस्टम्स की लेते हैं एडल्ट में, इसी तरह लेनी है, ठीक है। बच्चों में थोड़ी पर्टिकुलर हो जाती है, हेरिडिटरी डिजीजेज में कुछ चीज़ें, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, अगेन इन्फेक्शियस डिजीज अगर फैमिली में किसी को है, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस या वर्सिला, ठीक है ना, चिकन पॉक्स वगैरह है। हार्ट डिजीज है, कोई मायोकार्डियल इन्फेक्शंस हैं, ठीक है ना। कोई पहले किसी बच्चे की सडन डेथ हुई है हार्ट डिजीज की वजह से, ठीक है ना। कोई एलर्जीज है फैमिली में, आई डिसऑर्डर्स हैं, हेयरिंग इश्यूज हैं, कोई एक्जिमा, कोई एनीमिया, थैलेसीमिया, हेमाटोलॉजिकल, ठीक है ना। एंड देन लंग्स में हमारे पास कुछ कोई रेस्पिरेटरी नमूनिया, कोई इस तरह के इश्यूज, एट बर्थ नमूनिया है कोई, ठीक है। और कैंसर है तो कोई अर्ली ऑनसेट्स हैं किसी के, डायबिटिक है, मतलब एवरी ऑर्गन को जो एवरी सिस्टम को जो है ना हम कवर करके जो है वो एक आइडिया ले लेते हैं, ठीक है ना। कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज है, कोई बोन डिजीजेज है, कोई प्रीवियस प्रॉब्लम्स इन प्रेगनेंसीज हैं, ठीक है ना। कोई अच्छा कोई लर्निंग प्रॉब्लम्स भी हैं, डिलेड माइलस्टोन्स भी हो सकते हैं प्रीवियस चाइल्ड के, ठीक है ना। तो ये भी एक वरीसम एरिया हो सकता है मदर का। एंड देन डाउन सिंड्रोम, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। जब हम जनरल रिव्यू करेंगे बॉडी का,
सिस्टम्स का, तो हम किस तरह करेंगे? हम जनरल एक क्वेश्चन करेंगे तो हम उसका ओवरऑल ग्रोथ पैटर्न पूछेंगे, ठीक है ना, जिसमें हम बच्चे का ओवरऑल हेल्थ स्टेटस चेक करते हैं, ठीक है, दूसरे बच्चों के साथ वो किस तरह खेलता है, कितना टाइम खेलता है, क्या वो अपना खाना खुद ले लेता है, उसका स्लीप पैटर्न, उसका कोई एक्टिविटी पैटर्न ऑल्टर्ड है या किस तरह से, ठीक है ना। अगेन हमने उसकी कोई किसी चीज़ से एलर्जीज है, कोई सीजनल उसको बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है ना, इट डिपेंड्स विद द एज अगेन, ठीक है ना। हमने पहले एंटीनेटल प्रीनेटल बहुत ही अर्ली एज की बात की, ठीक है ना, कि बहुत ही न्यू बॉर्न बच्चा आया है या कोई इन्फेंट है, ठीक है, तो उसकी हिस्ट्री एंड देन ये अगर हम नॉर्मल एक बच्चे की हिस्ट्री लेंगे, ठीक है ना, तो हमने कोई उसको कोई एलर्जीज, कोई सीजनल इश्यूज या किसी चीज़ से एक्सपोजर पे उसको कोई इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है। अगेन स्किन रैशेस, ठीक है ना, सीजनल भी हो सकते हैं, एक्जिमा वगैरह, ठीक है ना, और हेरिडिटरी भी होते हैं, सेबोरिक डर्माटाइटिस है, इस तरह की चीज़ें अगर फैमिली में होगी तो इट विल लीड बच्चे की ड्राई स्किन, ड्राई स्कैल्प, ठीक है, तो वो इट विल बी रिलेटेड, ठीक है ना, चेंजेस इन स्किन कलर, टेक्सचर, टेंडेंसी ऑफ ब्रूजिंग, ठीक है ना, अगर बहुत ज़्यादा ब्रूजेज है तो हो सकता है बच्चे के प्लेटलेट्स में कोई इश्यूज है, ठीक है ना, और वो मदर इज नॉट अवेयर, ठीक है, तो पूछना है हमने कि कोई ब्लड टेस्ट करवाए हैं, क्या है, ठीक है ना। लिम्फ नोड्स कोई टेंडर तो नहीं, ऑब्वियसली वी विल गो डू दिस इन फिजिकल एग्जामिनेशन, मदर कैन नॉट टेल। हेयर्स एंड नेल्स में हेयर लॉस, हेयर ग्रोथ पैटर्न होता है बच्चों में, वैसे लॉस तो बाद में होगा, ग्रो प्रॉपर हो रहे हैं, ठीक है ना, बहुत अर्ली एजेस में एट टाइम्स मदर्स आर कंसर्न कि अच्छा बच्चे के बाल बहुत थोड़े आ रहे हैं, तो इट्स नॉर्मल, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है कि उस बच्चे में कोई मसला हो, ठीक है ना। तो जो है ये हमने उनको अंडरस्टैंड करवाना होता है कि ठीक है विद एज जो है ये दिस इज समथिंग दैट ग्रोज, और अगर बहुत 4-5 साल का बच्चा है और उसके बाल नहीं आ रहे तो देन दैट इज द एरिया ऑफ कंसर्न, ठीक है ना। तो अगर कुछ महीनों का बच्चा और मदर आ जाती है कि जिससे तो बाल ही नहीं आ रहे तो दैट्स ओके, ठीक है ना। देन हेडेक्स तो बच्चा कैन नॉट टेल यू, ठीक है ना, विजन प्रॉब्लम्स है, कोई स्क्विंटिंग ऑफ आईज है, क्रॉस्ड आईज है, लेजी आईज अ कॉमन थिंग, ठीक है ना, और आई इन्फेक्शंस, रेडनेस, टीयरिंग, अगेन गोज इन ईयर्स के, ईयर इन्फेक्शन तो नहीं है, ईयर से कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, बच्चा आवाज़ देने पे जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा है, ठीक है ना। एंड देन नोज के साथ ये नोज ब्लीडिंग, नेजल कंजेशन या कोई रनी नोज का है, या वही अगेन हमने जो कहा कि एलर्जीज, फ्रीक्वेंट एलर्जीज तो नहीं है, ठीक है ना, जिसका से डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है, स्नोरिंग है। अच्छा बच्चों में क्या होता है, ग्लैंड्स भी स्वेल हो जाते हैं, ठीक है, तो एडिनोइड ग्लैंड्स और ये अगर स्वेल होंगे जिसकी वजह से भी है ना बच्चे को जो टॉन्सिल्स, तो इन चीज़ों की वजह से भी है बच्चों को जो है वो ब्रीदिंग इश्यूज होंगे, ठीक है ना, swallowing इश्यूज होंगे, ठीक है, स्नोरिंग एट नाइट जो है वो इसी से एसोसिएटेड भी हो सकता है, ठीक है ना। अगेन माउथ सोर्स में, माउथ में सोर्स हैं या माउथ ऑर्डर या टूथ इरप्शन में कोई मसला है, ठीक है, कैविटीज है, ये सारे बच्चों के प्रॉब्लम, ठीक है ना, ये सारी चीजें मदर कैन नॉट टेल यू, ठीक है। अच्छा, अब एक बच्चा है उसका अगर हम फिजिकल एग्जामिनेशन पे जाते हैं तो एज अ नर्स हम क्या करेंगे, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, ऑस्कल्टेशन एंड सब्टेशन, ठीक है ना, ये तो हमारा जो है वो फिक्स है, ठीक है ना। इंस्पेक्शन में हमने पहले भी पढ़ा है, अगर बच्चे को लेके करेंगे तो सेम गोज के हमने उसके इंस्पेक्ट करने हैं, उसके फिजिकल फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक, साइज, शेप, कलर, मूवमेंट, पोजीशन, लोकेशन, ठीक है ना, कोई जो एरिया हम करें वहाँ से कोई पर्टिकुलर इन्फेक्शन की ऑर्डर आ रही है, ठीक है, तो दिस इज इंस्पेक्शन। पैल्पेशन क्या होता है, पैल्पेशन होता है कि हमने जो है वो चीज़ को टच किया, ठीक है ना, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या देखा, कोई उसका टेक्सचर है, कोई मॉइस्चनेस है, कोई टेंडरनेस है, ठीक है ना, टच करके हमें और क्या पता चलेगा, उसका टेम्परेचर, उसकी पोजीशन क्या है, एट टाइम्स हम पैल्पेट ये भी देख लेते हैं, ठीक है ना, कंसिस्टेंसी, मोबिलिटी ऑफ मासेस एंड ऑर्गन्स, ठीक है ना, और क्या करते हैं,
The palmar surface of the finger and finger pads help determine position, size, consistency, nuances, ठीक है ना. और ulnar surface of the hands is best for detection of vibration. ठीक है. ऑस्कल्टेशन में हम क्या करते हैं, अगेन स्टेथोस्कोप लेके जो है वो अपना एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं. कुड बी हार्ट साउंड, स्टमक साउंड, लंग साउंड, वॉट एवर. एंड परकशन वो जैसे जस्ट रिव्यू, क्विक रिव्यू है, ताकि जो है हमारे पास ऑब्वियसली हमने सारे सिस्टम्स में यही किया है. बट अगेन ठीक है ना, परकशन क्या करते हैं हम, जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली जो है वो वाइब्रेशन को जो है वो चेक करते हैं विद डेंसिटी ऑफ. कोई आ रहा है, कोई जा रहा है. अच्छा, जब बच्चे की स्किन देखेंगे फिर क्या करेंगे, स्किन का कलर, टेम्परेचर, टेक्सचर, मॉइस्चर, ठीक है. एंड देन अगेन डिहाइड्रेशन देखेंगे, ठीक है ना. जो वेट लॉस हुआ है डिहाइड्रेशन की वजह से वो भी हम देखते हैं. ठीक है, इसके अलावा हम डिहाइड्रेशन किससे देखेंगे बच्चों को, एक तो हमने कहा कि फॉन्टेनल से पता चलता है, ठीक है ना, स्किन टर्गट से पता चल जाएगा, ठीक है ना, संकन आईज, ठीक है. लेकिन जो हमने स्किन में देखना है वो यही देखना है कि उसका स्किन टर्गट कैसा है, ठीक है, मॉइस्चर कैसा है. ये स्किन में हमने पढ़ा था, अगेन इट्स अ रिव्यू. ठीक है, मैक्यूल, पैच, पेप्यूल, नोड्यूल, ट्यूमर और वेसिकल. ठीक है, अभी फोन आ गया. रिव्यू करना है ये स्किन लीजन्स को, ये याद है. ठीक है, मैक्यूल क्या होता है, फ्लैट होता है, नॉन पैल्पेबल डायमीटर का होता है, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर ईच का होता है, ठीक है ना. फ्रैकल्स हो गए, रुबेला के जो पैचेस होते हैं, ठीक है, या पेटैकी भी कहते हैं, ठीक है ना. देन पैच क्या होता है, पैच भी तकरीबन 1 सेंटीमीटर और हाफ इंच का होता है, ठीक है ना. मंगोलियन स्पॉट, ये इस तरह के जो पैचेस होते हैं वो पैच में आते हैं, ठीक है ना. पेप्यूल क्या होता है, पेप्यूल थोड़ा सा एलिवेटेड होता है, फर्म होता है, ठीक है ना, सॉफ्ट नहीं होता है, फर्म होता है पेप्यूल. 1 सेंटीमीटर. इस पेप्यूल्स में क्या आ जाते हैं आपके वॉट्स, ठीक है ना. वॉट्स तो कॉमनली सबने देखे होते हैं. नोड्यूल्स क्या होते हैं, नोड्यूल फॉर्म होते हैं, ठीक है ना, डीपर होते हैं dermis के अंदर, ठीक है ना, पेप्यूल से ज्यादा अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है ना. और ये भी फॉर्म होते हैं, हार्ड होते हैं, हार्ड टू टच होते हैं, ठीक है ना. जिसके अंदर क्या आ जाता है, ट्यूमर्स है. ट्यूमर्स एक एलिवेटेड सा सॉलिड होता है जिस, ठीक है, ये तकरीबन 2 सेंटीमीटर का होता है, जिसमें आपने नियोप्लाज्म या हेमेंजोमा टाइप के जो ट्यूमर्स होते हैं वो आ जाते हैं. एंड वेसिकल्स जो है वो हमारे पास फ्लूइड वाली जो फिल की हुई चीजें होती है, जिसमें अर्ली चिकन पॉक्स या हर्पिस टाइप के जो होंगे वो जो है वो वेसिकल्स कहलाएंगे, ठीक है. एंड देन हमारे पास पेस्ट्यूल है. पेस्ट्यूल क्या है, वेसिकल फिल विद फ्लूरेंट फ्लूइड, ठीक है ना. एक तो वाटरी फ्लूइड हमने कहा वो है वेसिकल, और जब फ्लूरेंट फ्लूइड होगा तो क्या हो जाएगा, वो पेस्ट्यूल हो जाएगा, जिसमें एम्पैथिको और एक्नी आ जाता है, ठीक है. एंड देन हमारे पास बुलय है. बुलय क्या होता है, इट्स लाइक अ ब्रेस्टर, ठीक है ना, छाला सा जो हो जाता है, दैट इज बुलय. एंड देन हमारे पास आ जाता है बील.
ठीक है ना. इट्स एलिवेटेड सॉलिड एरिया ऑफ द इंटरमेटस स्किन. ठीक है ना. यूट्रिक एरिया या इंसेक्ट बाइट होता है जो हमारी अपर स्किन जो है वो सिर्फ स्वेल करती है, उसको क्या कहते हैं. ठीक है. तो बच्चों में भी ये चीज़ें इसी तरह रहेंगी कि जब हम स्किन असेसमेंट करेंगे तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें इसी तरह से जो है. ठीक है. इसके अलावा ये बच्चों में हमारे पास एक चीज़ आ जाती है, सूचर्स. ठीक है ना. स्कल बोन्स में, ठीक है ना, वो फोंटेनल की बात है कि जब ये बोन्स जो है वो अलग होंगे तो हमें फोंटेनल, एंटीरियर और पोस्टीरियर फोंटेनल. ठीक है ना. पोस्टीरियर फोंटेनल तो जो है बहुत जल्दी जो है वो क्लोज हो जाता है, एंटीरियर फोंटेनल जो है वो टाइम लेता है. ठीक है. तो ये ऑलवेज जो है ये हमारे पास एक सॉफ्ट एरिया होगा, ये बल्ज आउट हुआ हुआ है या ग्रुप इन हुआ हुआ है तो जो है हमें दैट इज द एरिया ऑफ कंसर्न. अच्छा, माइक किसका खुला हुआ है, प्लीज बंद कर दो मेरे अलावा. ठीक है. तो हमने फोंटेनल देख लिया, सूचर्स देख लिए. अगर बहुत छोटा बच्चा है तो हम न्यू बॉर्न आ रहा है, ठीक है, तो हमने जो है वो पोस्टीरियर फोंटेनल पे जो है वो पेट करना है. ठीक है. अगर बच्चा बड़ा है, 1.5-2 साल का है, तो फिर फोंटेनल क्लोज हो जाते हैं. अगर 1 ईयर तक, 1.5 ईयर तक का बच्चा है तो इंटीरियर फोंटेनल जो है वो नजर आएगा ओपन. ठीक है ना. तो 1.5 साल तक के बच्चे में इट्स ओके, 18 मंथ्स तक इट्स फाइन एंटीरियर फोंटेनल, और 2 to 3 मंथ्स में जो है हमें क्या क्या आ जाएगा, पोस्टीरियर फोंटेनल भी करना है. ठीक है ना. तो दीज आर द थिंग्स जो हम एडल्ट में नहीं कर रहे थे. ठीक है. इसके बाद जब रेस्पिरेटरी रेट की बात करते हैं तो हमने कहा था कि रेस्पिरेटरी रेट बच्चों में ज़्यादा होता है. ठीक है ना. जो 10 साल तक के बच्चे होते हैं उसके बाद जो है वो कम होना शुरू होता है. ठीक है ना. यूजुअली 7-8 में भी डिपेंड करता है बच्चे की ग्रोथ पे. ठीक है ना. बट यस, जो छोटा होगा, न्यू बॉर्न होगा, उसका रेस्पिरेटरी रेट क्या होगा, 30 to 60 होगा. ठीक है ना. एंड देन 1-1.5 ईयर तक वो 20 to 30 तक जाएगा, एंड देन इट गोज टू. ठीक है. तो जो नॉर्मल एडल्ट वाले जो उसको 12 से 20 वाले सेक्शन में आने तक जो है वो एटलीस्ट 10+ का बच्चा होगा, तभी जाके जो है वो एडल्ट वाले जो है वो रेस्पिरेटरी होगा. इससे पहले जो भी है बच्चे का वो रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होगा. बट अगेन हमें पता होना चाहिए, ऐसा ना हो कि 10 साल के बच्चे का 60 आ रहा है तो हम कहेंगे नहीं बच्चों का तो ज़्यादा सही होता है. ठीक है ना. इट हैज़ टू बी, ये हमें पता होना चाहिए कि जो है वो न्यू बॉर्न का सिर्फ 60 तक होता है, फिर 1 ईयर तक चलो 40 तक, एंड देन जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते जा रहे हैं वो लिमिट जो है वो ड्रॉप डाउन होती है. ठीक है. देन अगेन गोज फॉर हार्ट रेट. हार्ट रेट भी क्या होता है, हमने बोला था ज्यादा होता है. ठीक है ना. तो क्या होगा, हार्ट रेट हमें किस तरह से मिलेगा बच्चों का, न्यू बॉर्न में मिलेगा तकरीबन 120 तक का. ठीक है ना. 100 to 170 की रेंज है. जब इन्फेंट 2 ईयर्स तक का होगा तो 80 to 130. फिर उससे बड़ा हो गया थोड़ा तो 70 to 120. ठीक है. एंड 10 to 16 ईयर्स में आ जाएगा 60 to 100. ठीक है. तो 10+ का जो बच्चा है उसको हम तकरीबन एडल्ट वाले उस पोजीशन में ले आते हैं. बट अगेन अ लॉट ऑफ फिजिकल चेंजेस वोंट बी देयर, बट यस इंटरनल ऑर्गन में रेस्पिरेटरी और कार्डियक वाइज जो है वो उस फेज पे हम उसको इवेल्युएट करते हैं. ठीक है. 10 साल से छोटा जो भी बच्चा है उसके सारे पैरामीटर्स विल बी डिफरेंट.
ठीक है। फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या चेंज होगा? द लोकेशन ऑफ एपिकल पल्स चेंजेस एज द चाइल्ड रिब केज ग्रोस. In children under 7 years old, it is located in the fourth intercostal space, just medial to the left mid-clavicular line. In children over 7 years, it is located in the fifth intercostal. Adult में कौन सी intercostal space पे होता है? Apical pulse. कार्डियक असेसमेंट में एपिकल पल्स ली थी ना हमने. किसी को भी नहीं पता. नो मैम, सॉरी. एपिकल पल्स कहाँ पे हम देखते हैं? मिड क्लेविकुलर लाइन पे, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे. ठीक है ना. तो जो 7 साल से बड़ा बच्चा है उसको हम फिफ्थ पे ले जाएंगे. इसमें मैंने अभी पढ़ा भी है, सामने लिखा हुआ भी है, फिर भी तुम लोगों को नहीं आता है. ठीक है ना. ठीक है. अपेक्स ऑफ द हार्ट पे हम सुनते हैं ना एपिकल पल्स. सही है. तो जो 7 साल से छोटे बच्चे हैं उनकी कहाँ पर होगी? फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे होगी. ये डिफरेंस है बच्चों का और बड़ों का, देख लो. हाईलाइटेड डिफरेंस है बहुत. ठीक है. एक हमने डिफरेंस की बात की रेस्पिरेटरी रेट की. ठीक है ना. रेस्पिरेटरी रेट में बहुत डिफरेंस है. कार्डियक रेट में डिफरेंस है. ठीक है ना. और डिफरेंस क्या है एपिकल पल्स का? कि वो हमें कार्डियक असेसमेंट में कहाँ मिलेगी? ऑस्कल्टेशन पे, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे. ठीक है. इसके अलावा क्या चेंजेस है? जो हार्ट साउंड्स हैं, S1 कहाँ पे मिलेगी? अपेक्स ऑफ द हार्ट, ट्राइकस्पिड एरिया, मिट्रल एरिया पे. ठीक है ना. S2 का मिलेगी बेस ऑफ द हार्ट, एओर्टिक एरिया और पल्मोनिक एरिया पे. ठीक है. और S3 मिट्रल एरिया पे. और फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग अगर हमने देखनी है तो वो पल्मोनिक एरिया पे जैसे होती है. ठीक है ना. कार्डियक का चैप्टर रिव्यू करोगे तभी चेंजेस समझ में आएंगे. ठीक है. फिर कार्डियक में हमने हार्ट मर्मर्स की बात की थी. ठीक है ना. ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 और ग्रेड 6 की. ठीक है ना. बेयरली हर्ड इन क्वाइट रूम. ठीक है ना. ग्रेड 2 क्वाइट बट क्लियरली हर्ड. कार्डियक मर्मर्स होते क्या हैं याद है? मर्मर्स क्या होता है?
अच्छा, हम एक ब्रेक लेते हैं, ठीक है ना, और ये मीटिंग भी एंड हो जाएगी तो मैं दूसरा लिंक भी शेयर करूँगी, तो फिर जो है हम 15 मिनट्स में स्टार्ट करते हैं दोबारा से, और जब तक आप लोग सोच रहे हैं कि मरमर्स क्या हैं। बोन्स, जॉइंट एंड स्ट्रक्चर, मूवमेंट एंड मसल स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है ना। जो माइलस्टोन्स होते हैं बच्चे के, ठीक है ना, उसको लेते हुए अगर हम चलते हैं तो रोल्स ओवर फ्रॉम प्रोन टू सुपाइन पोजीशन, ठीक है ना। बच्चा तकरीबन 4 मंथ्स की एज में जब वो रोल अप होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना, सीधे से उल्टा, उल्टे से सीधा, ठीक है ना। एटलीस्ट 8 मंथ का बच्चा जो है वो सिट विदाउट सपोर्ट होता है, ठीक है ना। और 10 मंथ्स का बच्चा पुल्स self to standing position, and 11 to 12 months is like walking around in the room holding the objects, ठीक है ना, पकड़ पकड़ के चल रहा होता है, ठीक है। और 3 मंथ्स का बच्चा जो होता है वो वॉक्स अकेला आराम से चल लेता है, ठीक है ना, तकरीबन। और जो है वो 2 साल का बच्चा है, जो वो बैलेंस उसका प्रॉपर हो जाता है तो वो बॉल्स को ग्रिप कर सकता है, ठीक है। एंड देन 2 से अबव 2.5 साल में जब बच्चा जाता है तो फिर क्या कर लेता है, छलांगे भी लगा सकता है, कूद भी सकता है, जंप अराउंड कर सकता है। एंड जो 36 मंथ्स का यानी 3 साल का बच्चा है वो क्या कर सकता है, अपने हाथों से भी जो है वो बॉल थ्रो कर सकता है। तो दीज आर द माइलस्टोन जो ग्रॉस मोटर के जो है वो बच्चों के होते हैं, ठीक है। तो कीपिंग दिस इन माइंड हमारा जो है वो हेल्थ असेसमेंट जो है वो मस्कुलोस्केलेटल का जो है वो अकॉर्डिंगली जो होगा, ठीक है ना। अगर हमने बहुत ही छोटा सा बच्चा इन्फेंट है 4-5 महीने का, तो हमें क्या उसके अंदर देखना होगा, उसकी मोटर माइलस्टोन में, कि वो जब वो खुद से हिलता जुलता करवट लेता है, रोल अप होता है या नहीं होता, ठीक है ना। तो 8 मंथ्स 9 मंथ्स का बच्चा है तो हमने देखना है बैठ रहा है, ठीक है ना। 1 साल का बच्चा है तो वो खड़ा भी हो रहा है, चल भी रहा है, किस तरह से, ठीक है। तो दीज आर अगर हमें पता होंगे माइलस्टोन तभी हम असेसमेंट कर सकेंगे, जब हमें नॉर्मल पता है तभी हम नॉर्मल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये किसी को रिव्यू करना है दोबारा तो एक बार कर लें। ठीक है, इसके अलावा इधर एक और एडिशनल पॉइंट हमारे पास है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, कि जो बच्चे के जो क्लैविकल्स होते हैं दोनों को, जब न्यू बॉर्न होता है यूजुअली, या जैसे घर गया है हॉस्पिटल के बाद और फिर आया है दोबारा 1 वीक में, या तो फिर हमने पैल्पेट क्या करना है, उसके क्लैविकल्स को पैल्पेट करना है कि स्टर्नम के, ठीक है ना, शोल्डर के, क्योंकि ये जो है यूजुअली जो है वो ड्यूरिंग बर्थ जो है वो बच्चों की फ्रैक्चर्ड होती है, ठीक है ना। और किस तरह से पता चलेगा, क्रैपिटस मूवमेंट्स, क्रैपिटस आवाज आएगी ना, कड़क कड़क की आवाज आएगी जब हम उसको पैल्पेट करेंगे, ठीक है ना। तो वो जो है या बच्चे को मूव करेंगे तो कड़क कड़क की आवाज आएगी हमें, ठीक है। क्रैपिटस की साउंड आएंगी जिससे पता चलेगा कि जो है वो उसकी क्लेविकल बोन या शोल्डर बोन जो है वो फ्रैक्चर्ड है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ पोस्चर एंड स्पाइन कर्व, ठीक है ना। उसमें भी हमें एज वाइज माइलस्टोन्स पे जाना है। अगर तो हमें 2 to 3 months में क्या होता है, होल्ड्स हेड erects with held upright thoracic kyphosis when sitting, ठीक है ना। सीधा सर तो रख लेता है लेकिन कमर कैसी होती है उसकी, थोड़ी सी रोल्ड अप होती है, स्काइफोसिस वाले होती है, ठीक है ना। 6 to 8 months का जो बच्चा होता है वो फिर जो है ना बगैर सपोर्ट के हमने कहा बैठेगा, और क्या होगा, उसकी स्पाइन फिर स्ट्रेट हो जाएगी, ठीक है। अब कोई 1.5 साल का बच्चा है जिसकी स्पाइन जो है वो स्काइफोसिस है या राउंड है, तो फिर दिस इज अ क्वेश्चन, ठीक है ना। तो फिर हमने देखना है कि वो बच्चा खुद से ऐसे बैठा हुआ है या वो सीधी नहीं कर पा रहा है। सो दिस इज द डिफरेंस इन 2 to 3 months और 6 to 8 months या 10 साल का जो बच्चा, 10 to 15 months का वॉक्स इंडिपेंडेंटली, स्ट्रेट स्पाइन होगी, ठीक है ना।
टोडलर होगा उसका यूजुअली क्या होगा, प्रोट्रूडेड एब्डोमेन होगा और लंबर लॉर्डोसिस होगा, ठीक है ना। बच्चे जो है वो इसी कर्व में चलते हैं ना, ठीक है। एंड देन स्कूल एज चाइल्ड का क्या होगा, हाइट ऑफ शोल्डर हिप्स इज लेवल, ठीक है ना, बैलेंस होगा, थोड़े से कर्वेचर और लंबर कॉनकेव कर्व में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है वो नॉर्मल स्पाइनल कर्वेचर है, ठीक है ना। एक हमने बोला कि नॉर्मल, हमने माइलस्टोन बोला कि उसका मसल्स एंड बोन्स किस तरह से चलेगा, और अब हमने बात की उसके स्पाइन कर्व की, जिसमें हमने बोला है कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं यानी मंथ्स के बच्चे हैं जो बैठना नहीं सीखे हैं, उनका जो है वो एक तो हेड अप होगा लेकिन उनकी जो बॉडी जो है वो कर्व्ड होगी, तो दिस इज नॉर्मल फॉर इट। लेकिन जब बच्चा उससे बड़ा हो जाएगा तो उसकी स्पाइन होगी स्ट्रेट होगी, ठीक है। एंड देन अदर माइलस्टोन्स गोज अकॉर्डिंगली कि वो बैठ रहा है, चल रहा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट गोज, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट अगेन बच्चों में आ जाता है, ठीक है ना। एडल्ट में हम ये चीज़ नहीं देखते हैं, लेकिन बच्चों में हमें लैंग्वेज डेवलपमेंट भी पूछनी होती है या असेस करनी होती है, ठीक है ना। ठीक है, अगर छोटा बच्चा आ रहा है 10 मंथ्स का, 8 मंथ्स का, तो उसका क्या है कि वो अंडरस्टैंड कर रहा है, मामा डाडा की आवाज़ दे रहा है, ठीक है ना, और कुछ वर्ड्स इंटीमेट कर रहा है। साल का बच्चा यूजुअली जो है वो प्रॉपर साउंड जो है वो निकाल लेता है, ठीक है ना। 1.5 साल का बच्चा तकरीबन कुछ वर्ड्स वोकेबलरी के यूज़ कर लेता है, आपसे जो है वो बात इंडायरेक्टली कर लेता है, ठीक है ना। या आप उससे कुछ पूछते हैं तो वो रिस्पॉन्ड करता है अकॉर्डिंगली, ठीक है ना, उसका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया होता है। 20 मंथ्स का बच्चा तकरीबन 2 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन में जो है वो बात करेगा, ठीक है। एंड देन 3 ईयर्स का बच्चा जो है वो प्रॉपर जो है वो 3 वर्ड सेंटेंस में जो है वो बात करेगा, ठीक है। तो दीज आर द लैंग्वेज माइलस्टोन्स। अगेन ये हमें या तो बात, हम मदर से नहीं पूछे, अगर बच्चा जवाब दे रहा है, फ्रेंडली है, तो वी कैन ऑलवेज चेक डायरेक्टली, ठीक है ना। अब यही है कि अगर बच्चे को असिस्ट करना है तो हमें उसके साथ अपनी रेपो डेवलप करनी होती है, उसके बाद ही बच्चा जो है वो हमारे साथ बात करेगा, ठीक है ना। और वी कैन ऑलवेज आस्क मदर अबाउट इट, बट यस जो हमारा प्राइमरी डेटा होगा वो हमें एग्जैक्टली जो मिलेगा वो हम अपने असेसमेंट को किस तरह करेंगे, डायरेक्टली बच्चे के साथ कम्युनिकेट करना, ठीक है। फिर बैलेंस जो बच्चे का होगा, जो हमने बात की पहले भी, माइलस्टोन्स में भी हमने बात की कि जो बच्चा सीधा खड़ा होगा बगैर सपोर्ट के, तो वो होगा जब जब हो जाएगा 1 साल का, ठीक है ना। 12 मंथ्स का बच्चा होगा तो वो बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाएगा सपोर्ट के बगैर, ठीक है ना। और जो तकरीबन 1.5 साल का बच्चा होगा वो जो है अलोन वॉक, ठीक है ना, वॉक। जो 2 साल का बच्चा होगा वो क्या करेगा, बैकवर्ड वॉक भी कर सकेगा, ठीक है ना। उसका बैलेंस इतना है कि वो बैकवर्ड वॉक भी कर लेगा, ठीक है ना। और जो 4 इयर्स का बच्चा है वो 1 फुट को 5 सेकेंड्स तक जो है वो बैलेंस करेगा, जो हमने एडल्ट में भी बैलेंसिंग टेक्निक चेक की है ना, ठीक है। और 5 साल का बच्चा हॉप ऑन 1 फुट, ठीक है ना, या हील टू टो वॉकिंग जो हमने की थी वो भी जो है वो 5 साल का बच्चा कर सकता है, ठीक है। और जो 6 साल का बच्चा होगा वो क्या, हील टू टो बैकवर्ड वॉकिंग भी कर सकता है, ठीक है। यानी उसका बैलेंस और अंडरस्टैंडिंग इस तरह से हो गई है कि वो जो है वो बैकवर्ड भी कर सकेगा, ठीक है। तो जो 6 साल का बच्चा होगा वो ओवरऑल जो है वो कूदता उछलता किक करता हुआ बैकवर्ड फॉरवर्ड हर तरह की जो है वो करता हुआ जो है वो नजर आता है, ठीक है। जो साल से छोटे बच्चे हैं उनको हम स्टैंडिंग के लिए हम देख सकते हैं, बट अगेन इट्स नॉट कंपल्सरी, ठीक है ना। इट्स नॉट मैंडेटरी कि हम फोर्स करें कि अच्छा आपका बच्चा 9 महीने का हो गया और अभी तक खड़ा नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन 9 महीने का बच्चा जो होगा वो बैठेगा, ठीक है ना, उसकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, नेक फोल्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो उन छोटे बच्चों के माइलस्टोन्स में जाएगी। और जो अबव 12 मंथ्स होंगे उसमें हमने जो बैलेंस की बात की है वो हम कहाँ देखेंगे, वो हम देखेंगे उनकी स्टैंडिंग एंड वॉकिंग।
ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے فائن موٹر اسکلس. فائن موٹر اسکلس میں بچوں کے ساتھ کیا ہوگا, ٹھیک ہے نا, بچے ٹرانسفر کریں گے ایک آبجیکٹ کو دوسرے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں چیز لے جانا. 7 منتھ کا بچہ ہوگا, ٹھیک ہے نا, اس سے چھوٹا جو بچہ ہوگا اس کو ہمیں چیزیں پکڑانی پڑیں گی, لیکن جو 7 منتھس کا بچہ ہے وہ خود ہی ہولڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پہ کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. 10 منتھس کا بچہ پکس اپ اسمال آبجیکٹ, چھوٹی چیزیں بھی اٹھا سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. اینڈ دین 12 منتھس کا بچہ ہوگا, وہ کیا کرے گا, خود سے جو ہے وہ فیڈ کرے اپنے آپ کو اسپون اور کپ سے, ٹھیک ہے. اینڈ 18 منتھس کا بچہ جو ہے وہ اس کی پینسل گریپ ہو جائے گی, وہ اسکریبل بھی کر سکتا ہے. جو 2 سال کا بچہ ہے وہ ٹاور بلڈ اپ کرے گا, ٹھیک ہے نا, 2 بلاک ٹاور بنا لے گا. جو تقریباً 2.5 سال کا بچہ ہے وہ کیا کرے گا, 4 بلاک کا ٹاور بنا لے گا, ٹھیک ہے نا. اور جو 36 منتھس کا یعنی 3 سال کا بچہ ہے وہ بٹن بھی کھول لے گا, اپنے بند کر لے گا, اس طرح سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو obviously یہ فائن موٹر اسکلز ہیں, بٹ یس ایگزیکٹلی یہ چیزیں ہوتے نہیں, بٹ کیپنگ ان مائنڈ کہ اتنا ڈیولپمنٹل اسٹیج بچے کا اس ایج تک ہو جانا چاہیے, ہم جو ہے اس کو اسس کر سکتے ہیں. یس اگر ہم پیڈیاٹرک وارڈ میں ہمارے پاس بلاکس وغیرہ اویلیبل ہے, وی کین آلویز ٹرائی دیز آن کڈس, کہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ ٹھیک ہے دس از دا اچیویبل مائل اسٹون, اور جس کو جو ہے وہ بچہ جو ہے. اور اگر بچے کا ڈیلیڈ ہے, ٹھیک ہے نا, اگر 2 سال کا بچہ ہے اور وہ خود سے کچھ پکڑ بھی نہیں رہا ہے, یا فیڈ بھی نہیں, اپنا کھانا بھی نہیں کھا رہا ہے, یا تو وہ ٹھیک ہے نا, ایک کوڈ بھی عادت, ٹھیک ہے نا, ایک عادت بھی ہوتی ہے کہ پیرنٹس سے اتنی ڈیپینڈنسی کی ہے, جبکہ بچے کو اگر دیں تو وہ خود سے کر سکتا ہے, بٹ مدر از ناٹ گیونگ اٹ, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارا اسسمنٹ کا پارٹ ہوگا کہ ہم نے کس طرح سے جو ہے اس سے اسسمنٹ کرنا ہے, کیونکہ بچہ ول نیور ٹیل یو, یو ہیو ٹو آبزرو اٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے کرینیل نرو فنکشن. اب یہ ہم نے چھوٹے بچوں میں تو نہیں کرانا, ٹھیک ہے نا, جو ہم نے یہ چلڈرن ہوں گے جو 7 8 9 ایئرس کے ہوں گے, اس میں فنگر ٹو نوز والی ایکسرسائز ہم کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہیل ٹو شن والا ٹیسٹ ہے جو ہم نے بولا, ٹھیک ہے نا, فنگر ٹو فنگر ٹیسٹ ہے, اور ریپڈ موومنٹ والا موشن ریپڈ موشن ٹیسٹ ہے. یہ سارے ٹیسٹ جو ہے یہ ہم کرینیل نروز کے لیے جو ہے بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں, انفینٹس کے ساتھ نہیں کر سکتے, چلڈرن کے ساتھ کر سکتے ہیں. جیسے ہم نے کہا 6 ایئرس کا جو بچہ ہے وہ موومنٹ پراپر کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کے ساتھ ہم نے یہ کوآرڈینیشن ایکسرسائزز ہماری کرینیل نرو والی ہم پرفارم کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب جیسے کرینیل نروز اگر ہم 1 بائی 1 چلتے ہیں, تو کرینیل نرو 1 ہے olfactory, ٹھیک ہے. olfactory نرو کو ہم کیا کریں گے, بچوں میں ٹیسٹ, انفینٹس میں نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نا. بچہ صرف فیڈ لیتا ہے تو ہم جو ہے اس پہ کوئی چیز ٹیسٹ تو ہم اس کو کرا بھی نہیں سکتے, اور اگر ہم کرائیں گے تو ہمیں بتا بھی نہیں سکتا, ٹھیک ہے. تو olfactory تو ہم نے کیا نہیں انفینٹ پہ. چلڈرن پہ ہم ناٹ روٹینلی ٹیسٹ, ٹھیک ہے نا. give familiar order to child to smell, اور اچھا olfactory, sorry I was mistakenly, ٹھیک ہے نا, وہ میں اس کو اس پہ لے جا رہی تھی ٹنگ پہ, ٹھیک ہے. تو بچہ جو ہے وہ اسمیل نہیں کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کو ان کی فیملیئر اسمیل جو ہے وہ ہم نے کرانی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر ایک چھوٹا بچہ ہے تو ہم اس کو, جیسے بچے بہت زیادہ چاکلیٹس کھاتے ہیں تو چاکلیٹ کی اسمیل دے کین ڈو, اورنج از اے کامن فوڈ جس کی اسمیل دے کین آئیڈینٹیفائی, یا اور کون سی اسمیلز ہوتی ہے جو بچے جلدی سے گیج کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کوئی فیوریٹ فوڈ کی اسمیل ہے یا اس طرح سے, ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے وہ آرڈر سے جو ہے ہم بچے کو چیک کر سکتے ہیں, لیکن ہم نے اگر ڈفرینٹ کوئی اور چیز بچے کو اسپرٹس الکوہول سویب یہ تو وہ بچہ کین ناٹ آئیڈینٹیفائی کہ وہ کیا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر ہم بچے کو olfactory چیک کر رہے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ اس کے انڈرسٹینڈنگ لیول کے حساب سے جو ہے وہ اس کو چیز اسمیل کروانی ہے, ٹھیک ہے نا. اینڈ دین اگین آلٹرنیٹ نوسٹرلز بند کر کے وی کین ٹرائی دیٹ.
ऑप्टिक में जो है वो इन्फेंट में हम देखेंगे, ठीक है ना, बच्चे अब ब्लिंक कर रहा है आंखें, ठीक है ना, उसकी आंखें शाइनी है, ठीक है ना, और अगेन जो है वो जब हम लाइट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ब्लिंक करेगा या फ्लैक्शन उसकी जो है वो हेड फ्लेक्स हो रहा है, ठीक है, तो यानी उसको लाइट रिफ्लेक्शन जो है वो फील हो रहा है, ठीक है। एंड देन बच्चों में क्या होगा, विजन चेक कर सकते हैं हम, अगर बच्चा कोऑपरेटिव, ये डिपेंड करता है एज के ऊपर ना, कि अगर बच्चा फोकस, वो हमने दो तरह के स्नेल चार्ट देखे थे, ठीक है ना, एक तो अल्फाबेट वाला था, अगर बच्चा उस एज का है तो हम अल्फाबेट वाइज टेस्ट कर लेंगे, अदरवाइज हमने एरोज राइट लेफ्ट वाला भी देखा था, ठीक है, वो भी बच्चों के साथ वी कैन ट्राई, और अदरवाइज जो है हम ऑब्वियसली पिक्टोरियल भी आते हैं बच्चों के, तो इस तरह से जो है बच्चों की विजन टेस्ट हो जाती है, ठीक है ना, तो इट डिपेंड्स कि बच्चा किस एज का। अगेन छोटे बहुत 2-3 साल का बच्चा होगा तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि उसके साथ किस चीज़ को लेके आप जो विजन टेस्ट करेंगे, ठीक है, और बच्चे यूजुअली इतने कोऑपरेटिव भी नहीं होते कि वो जो है वो इतना बड़ा जो है वो स्नेल चार्ट जो है वो हमारे साथ रीड आउट करें, ठीक है ना। देन गोज ऑक्यूलोमोटर टॉक्लियर और एब्ड्यूसेंस, ठीक है ना, ये अगेन आईज के साथ जाती है, ठीक है ना, तो इसमें अगेन जो है वो हम इन्फेंट में जो है वो पेन लाइट डालेंगे तो आईज जो है वो साइड पे मूव करती है, ठीक है, और बच्चे के अगर जो छोटा बच्चा है उसके सामने से अगर कोई चीज़ आप हटाते हैं तो ऑब्वियसली वो उसको देखेगा, या आप फिंगर दिखा रहे उसको कोई टॉय दिखा के आप लेफ्ट पे ले जाते हैं या राइट पे ले जाते हैं तो वो उस फील को जो है वो फॉलो करेगा, ठीक है ना, उस चीज़ को, तो ये हम देख सकते हैं। और बाकी जो अगर हमने देखना भी है तो बच्चे में लेजी आई हमें नज़र आ जाती है, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स, ठीक है ना, या जो है वो प्यूपिल्स इक्वल साइज के नहीं, वो भी हमें नज़र आ जाएंगे। लाइट रिस्पॉन्स हम चेक कर सकते हैं पेन लाइट से, ठीक है ना, प्यूपिल्स रिस्पॉन्स जो है वो हम चेक कर लेते हैं, तो वो वी कैन डू दैट इन एनी बच्चा, ठीक है ना, तो वो हो सकता है, ठीक है। एंड देन गोज द ट्राइजेमिनल नर्व 5 है, ठीक है ना, जिसमें हमने रूटिंग रिफ्लेक्स है, ठीक है ना, बच्चों का सकिंग रिफ्लेक्स है, वो तो आप फीडर देंगे तो वो रूटिंग सकेंगे, अगर हम बच्चे के लिप्स के एक साइड पे हल्का सा टिकल करेंगे तो वैसे ही जो है वो हमें रूटिंग रिफ्लेक्स जो है वो पता चल जाता है, ठीक है ना। और इसके बाद जो है रूटिंग रिफ्लेक्स पता है ना किस तरह करते हैं, छोटे बच्चे के आप लिप्स के एक कॉर्नर पे, जिस कॉर्नर पे आप थोड़ा सा जो है ना वो टिकल करोगे ना तो वो उसी तरफ जो है वो हेड लेकर आएगा, ठीक है ना, तो दैट इज वो उसका सकिंग रिफ्लेक्स होता है। एंड देन ऑब्जर्व द चाइल्ड चूइंग अ क्रैकर, ठीक है ना, या उसके जो है वो चीक्स पे और उस पे कॉटन बॉल आपने टच कर दिया, ठीक है ना, तो उससे भी ट्राइजेमिनल नर्व आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद हमारे पास आ जाती है नंबर 7 फेशियल नर्व आ जाती है, ठीक है, जिसमें जो है हम क्राइंग, स्माइलिंग, फ्रॉनिंग, ऑब्वियसली दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व, हर बच्चा करेगा, ठीक है ना, हमें देख के ही आधे तो शुरू हो जाएंगे, ठीक है, तो वो तो हमें रिफ्लेक्सेस ये वाले पता चल ही जाएंगे ना चाहते हुए। एकॉस्टिक, ठीक है ना, प्रोड्यूस अ लाउड साउंड नियर द हेड, ठीक है ना, ब्लिंक्स इन रिस्पॉन्स टू अ साउंड, मूव्स हेड टुवर्ड्स द साउंड और फ्रीज पोजीशन, ठीक है ना। अब छोटा सा बच्चा है अगर सोया हुआ है, हम उसके लेफ्ट या राइट साइड पे जो है टैप करेंगे, क्लैप कर देंगे जोर से, तो क्या होगा, बच्चा ब्लिंक करेगा या अपना हेड मूव करेगा तो हमें पता चलेगा कि उसको साउंड चली गई है, ठीक है ना। और जो एक छोटा सा बच्चा है तो हम उसके कान में भी कुछ विस्पर कर सकते हैं, ठीक है ना, तो वो भी हमें बता सकते हैं अगर अंडरस्टैंडिंग उस बच्चे की उस वर्ड्स की है तो, ठीक है ना। देन ग्लासोफेरेंजियल हम आ गए, उसमें हमने बात की स्वॉलोइंग की, ठीक है ना, ड्यूरिंग फीडिंग, ठीक है ना, और इसके बाद आ जाता है गैग रिफ्लेक्स है, वो तो हमें पता चल ही जाएगा, जैसे फीड कर रहा है बच्चा, स्वॉलो कर रहा है या उसको गैग आउट कर रहा है, ठीक है ना। किसी भी एज का बच्चा अगर हमें उसका गैग करना है, हमने उसको आ करके टंग डिप्रेस से लगाना है, वो वैसे ही गैग आउट हो जाता है, ठीक है, तो दिस इज अनदर वे कि हमें पता चल जाएगा कि गैग उसका एक्टिव है, ठीक है ना।
اینڈ دین اسپائنل ایسیسری کے لیے 11th کے لیے بچوں میں ہم نہیں دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا، اسپائنل نرو کیونکہ اور جو اگر ایک تو چھوٹا بچہ ہے تو اس میں کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ شولڈرز کو ریز کرے، ٹھیک ہے نا، اور ٹرن ہیڈ کو ایک سائڈ سے دوسری سائڈ کو موو کرے، ٹھیک ہے نا، ریزسٹینس کے اگینسٹ، ٹھیک ہے نا، دیٹ ول شو کہ اس کا جو ہے وہ گڈ اسٹرینتھ آف شولڈر اینڈ نیک، جو ہم ایڈلٹس میں کر رہے تھے اسی طرح سے جو ہے ہم بچے میں کریں گے، بٹ اگین انفینٹس میں وی کین ناٹ ڈو دیٹ. اینڈ دین ہائپوگلوسل، ٹھیک ہے نا، جو میں آپ کو سب سے پہلے بتا رہی تھی، پتہ نہیں، ٹھیک ہے، 12th، ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوگا، ہم نے فیڈنگ دیکھنی ہے، سکنگ دیکھنی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا سوالوئنگ کوآرڈینیشن دیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور چھوٹا بچہ ہوگا اس میں سملرلی جیسے ہم نے ایڈلٹ میں کیا تھا کہ ہم اس کو بولیں گے اسٹک آؤٹ دا ٹنگ، ٹھیک ہے نا، یا اس کو باہر وگل کرے ٹنگ کو، ٹھیک ہے، ہم اس کی باتیں سنیں گے وہ کس طرح سے بول رہا ہے، اس کی ٹنگ کی موومنٹ مڈ لائن ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے ورڈ جو ہے وہ کلیئر ہے یا آرٹیکولیٹڈ ہے کس طرح سے، ٹھیک ہے، تو دس از ہاؤ جو ہے وہ cranial nerves goes in infants and children. ٹھیک ہے، تو انفینٹس میں ہم olfactory نہیں دیکھیں گے، اور کون سی نہیں دیکھیں گے ہم انفینٹس میں، نمبر 11th، ٹھیک ہے نا، اسپائنل ایسیسری بھی ہم نہیں دیکھیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ دو نروز جو ہے وہ ہم انفینٹس میں نہیں چیک کریں گے. ٹھیک ہے، اور یہ ہمارا جو ہے وہ اینڈ میں جو ہے یہ ہے کہ اوور آل جو ہے ہم جو ہر سسٹم میں کر رہے تھے کہ ہم نے ڈفرینٹ ایجز کی جب ہسٹری چیکنگ کرنی ہے تو اس میں ہم نے کیا کیا چیک کرنا ہے، تو ایلیمنٹس آف ہسٹری میں ہم نے جیسے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، ٹھیک ہے نا، کہ ہم چیف کمپلین دیکھ لی، ہسٹری آف النس، پاسٹ ہسٹری دیکھ لیا، کرنٹ ہیلتھ اسٹیٹس، ریویو آف سسٹم کر لیا، فیملی ہسٹری چیک کر لی، سائیکو سوشل ڈیٹا، ڈیولپمنٹل ڈیٹا بچوں کا ساتھ جائے گا، ٹھیک ہے نا، اینڈ بچوں کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے، اگر ہم نے پرائیویسی مینٹین کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے ساتھ کون ہوگا، ایڈلٹ جو ہے اس کا جو ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہے نا، ایز اے پیرنٹ کوئی ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے نا، بچوں سے ہم اوپن ہینڈیڈ کویشچن کریں گے، ٹھیک ہے نا، ایک کویشچن ایٹ اے ٹائم کریں گے، اور جب بچے سے ڈائریکٹ کویشچن جو اپروپریٹ ہے وہی کریں گے، ٹھیک ہے نا، اور بچوں پیرنٹ سے جو ہے وہ فیڈ بیک لے لیں گے، یا بچہ جو بول رہا ہے اس کا جو ہے وہ کنفرمیشن وی کین آلویز آسک دا پیرنٹس فار دا کنفرمیشن، ٹھیک ہے نا، اینڈ الاؤ ینگ چائلڈ ٹو اسٹے وتھ کیئر ٹیکرس، ٹھیک ہے نا، لیب میں اگر لینا چاہتا ہے تو پھر ایگزامینیشن میں ہم پیرنٹ کی گود میں ہی رہنے دیں گے، ٹھیک ہے نا. اچھا، بچے کے ساتھ اگر ہم کوئی اکوپمنٹ یوز کر رہے ہیں یا کوئی چیز یوز کر رہے ہیں تو ہم اس کو الاؤ کریں گے کہ پہلے سے ہم آپتھلموسکوپ یا آٹوسکوپ یوز کر رہے ہیں بچے کے ساتھ تو ہم اس کو ٹچ کروائیں گے کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ہرٹ ہم، ٹھیک ہے نا. تو جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ ایک بچے کا جو ہے وہ ایک لیول آف ٹرسٹ جو ہے وہ بڑھے گا، اور وہ ہمیں جو ہے وہ ایگزامینیشن پراپر الاؤ کرے گا، ٹھیک ہے نا، ہمارا جو ایز آف ہو جائے گا. اگر ہم آسکلٹیٹ کرنا جا رہے ہیں کچھ تو ہم اسٹیتھوسکوپ بچے کو دے سکتے ہیں تھوڑی دیر کھیلنے کے لیے کہ دیکھو وی آر ہیئرنگ دا ساؤنڈز اینڈ دین آؤ میں بھی سنتا ہوں آپ بھی سنو کر، ٹھیک ہے. تو دس از ہاؤ جو بچوں کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. ایک دم سے جو ہے وہ کوئک موومنٹ کے ساتھ کوئی اسسمنٹ یا کوئی ایگزامینیشن پرفارم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا. اینڈ دین any painful or frightening procedure examination of throat and ear should be delayed until the end، ٹھیک ہے نا. اب ہم نے کوئی انٹرنل ایگزامینیشن جو بھی کرنا ہے نا، پین اور ہمیں لگ رہا ہے کہ بچے کو وہاں پین ہے اور اس ایریا کو تو ہم نے سب سے لاسٹ میں جا کے ٹچ کرنا ہے تاکہ جو ہے وہ ہمارا اوور آل جو ہے وہ ایگزامینیشن ڈسٹرب نہ ہو اور ہم پورا اپنا ایگزامینیشن کر لیں، اینڈ دین وی کین گو اینڈ اسیس دیٹ
final point है ना. Physical examination of school age children should be proceed in head to toe fashion with the exception of genital examination should be done at the end. ठीक है. And then physical examination of adolescent may be completed without the presence of parents, especially examination of the genital. ठीक है ना. जो बड़े बच्चे हैं उन अगर हम एडोलेसेंस का कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वी वोंट कि हम पेरेंट्स की मौजूदगी में नहीं कराएंगे, चाइल्ड में भी अनकंफर्टेबल. ठीक है. तो वी कैन ऑलवेज आस्क बच्चा एंड द पेरेंट इफ दे वांट टू स्टे इन और मूव आउट. ठीक है. ठीक है. जो फिजिकल एग्जामिनेशन टेक्निक होगी जो इन्फेंट्स और टॉडलर्स में होगी वो कहाँ से शुरू होगा, हेड सर्कमफ्रेंस से शुरू होगा. ठीक है ना. फॉन्टेनल हम पैल्पेट करेंगे. ठीक है ना. उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका विजन, हेयरिंग. ठीक है ना. वो यूज ऑफ टॉयज से हम चेक कर लेंगे. ठीक है ना. फिर उसके बाद हम कहाँ आ जाएंगे, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनेट टॉडलर. ठीक है ना. और फिर जो है वो हम डायरेक्ट परकशन ऑफ चेस्ट टू एवेल्युएट रेजोनेंस. ठीक है. और अगर कोई प्री स्कूल है तो प्री स्कूलर है तो हम क्या करेंगे, आज द चाइल्ड टू शो टीथ एंड बिगिन असेसमेंट विद माउथ एंड थ्रोट. ठीक है ना. अगर कोई छोटा बच्चा है जो प्री स्कूलर है तो हम उसके टीथ से शुरू कर सकते हैं, यानी एक सूदिंग होगा या उसके लिए कंफर्ट जोन होगा. ठीक है. हम टीथ शो में माउथ थ्रोट इस तरह करके जो है हम स्टार्ट कर सके. ठीक है ना. जेंटली टीथ अपार्ट एंड टंग डिप्रेशन एंड इफ टीथ remains clenched. ठीक है ना. use familiar objects and words easily, recognize, assess vision and hearing. ठीक है ना. और males should sit tailor fashion to assess genital. ठीक है ना. तो ये जो है प्री स्कूलर के साथ हमने कम्युनिकेशन करना है और जो इन्फेंट्स एंड टॉडलर्स के साथ हमने हेड सर्कमफ्रेंस से जो है वो शुरू करना है. और जब एडोलेसेंस होगा तो अगेन उसमें हमने जो है वो एडल्ट्स के वाले ऑर्गन्स को, एडल्ट्स डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एंड जेनिटल एग्जामिनेशन पे जो है वो फोकस करना होगा. ठीक है. ठीक है. एंड देन हमारे पास आ जाता है जो 5 जो साइंस होंगी मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसको हमने ध्यान में रखना है. उसमें हमने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. ठीक है ना. ब्रेडिकार्डिया, टेकिपनिया. ठीक है ना. पेन है, साइन ऑफ डिहाइड्रेशन वेरी कॉमन इन किड्स. ठीक है ना. जिसमें अगर बच्चा रो रहा है, नो टीयर्स है, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो रहा है, स्किन टर्गर रफ है, संकन फॉन्टेनल है. ठीक है. और यूरिन कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो दीज आर ऑल द साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन. ठीक है ना. इसके अलावा स्ट्राइडर्स फील हो रहे हैं या रिट्रैक्शंस हैं या साइनोटिक बेबी है तो दीज आर द हाई अलर्ट साइंस इन किड्स. ठीक है ना. नॉर्मल हार्ट रेट हमने डिस्कस कर लिया था बच्चों का. ठीक है ना. बच्चों का हार्ट रेट ज़्यादा होगा तो अगर उनके ज़्यादा हार्ट रेट के को कीपिंग इन माइंड ब्रेडिकार्डिया. ठीक है ना. और टेकिपनिया भी कीपिंग इन माइंड उनका जो है हाईएस्ट ब्रीदिंग रेट है उसके ऊपर जा रहा है. ठीक है ना. क्योंकि बच्चा हो नॉर्मली टेकिपनी को ब्रेडिकार्डिया को टेकिकार्डिया की है. ठीक है. तो इसको जो है वो ध्यान में रखना है. ठीक है. दिस इज ऑल फॉर टुडे. अच्छा एक वीडियो है मेरे पास.